us turn in our Bibles to Philippians chapter 3, please. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की तरफ हम सब अपने बाइबलों को मोड़ेंगे। As we turn, let us also set our hearts now and minds to studying of the scriptures. जैसे हम इस वचनों को खोलते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय और मन को भी वचन के ध्यान करने की तरफ हम लगाएंगे। Let us turn to all the verses. इन सारे वचनों को अब हम देखेंगे And be ready to argue in our minds, reason in our minds as we read the scriptures. जैसे जैसे हम इन वचनों को पढ़ते हैं इन वचनों के साथ एक वाद विवाद एक तर्क को हम करने की कोशिश करेंगे। This time is called the time of Bible study. बाइबल अध्ययन का समय ये समय है। So we need to be doing that. और वो काम अभी हम करने जा रहे हैं। Bible study is somewhat different to listening to a message. एक संदेश सुनना और बाइबल अध्ययन ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। Listening to a message, we just keep on listening. एक संदेश को सुनने का मतलब है बस बैठकर बस सुनते ही जाए। But studying will involve us also doing something. और बाइबल अध्ययन का ये मतलब होता है कि उस समय हम भी उस काम में शामिल हो जाएं। So let us be doing that. इसलिए अभी हम सब मिलकर ये काम करने जा रहे हैं। पढ़ेंगे, thinking, सोचेंगे, reasoning in our minds, हमारे मन में उसके बारे में सोच विचार करेंगे, wherever and whenever necessary taking down some notes. और जहाँ जहाँ जरूरी लगे तुरंत अपने नोटबुक में लिख लेंगे। So this is a time of Bible study for the youth. जवानों के लिए ये बाइबल अध्ययन का समय है। And we would like to see the young people in the forefront of the congregation. और हम चाहेंगे कि जवान लोग आगे आकर बैठ सके। I am not in any way despising the older people. I myself am an old man. उसका मतलब ये नहीं है कि हम वृद्ध जो बूढ़े हैं उनसे हम द्वेष करते हैं, क्योंकि मैं भी तो वो एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। So as we now read and afterwards we are going to pray. जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। At that time all the Sunday school children will please go to the Sunday class. और जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस समय संडे स्कूल के बच्चे अपने संडे स्कूल क्लास की तरफ जाएंगे। It's a very strange situation. Sunday class on a Wednesday. संडे क्लास आज वेडनेसडे के दिन हो रहा है। But अजीब सी बात है। we will do it. We'll say children's class. इसलिए हम कहेंगे चिल्ड्रंस क्लास। So we request all the children to go. और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे चिल्ड्रंस क्लास की तरफ जा सकें। And then at that time also I request the young brothers, young boys to come forward. उस समय हम चाहेंगे जवान भाई और जवान बहन आप उठकर आगे की तरफ आकर बैठिए। I think best of the young people there, the teenagers are right behind. और यहाँ पर हम देख सकते हैं जवान बहनें कुछ पीछे बैठे हुए हैं। So you could all stand up at that time and walk forward and fill up this area. These uncles will get to maybe to that side. और यहाँ पर आप उठकर आगे आकर जब बैठेंगे अंकल लोग और आंटी लोग थोड़ा साइड में हटकर बैठेंगे। We are not going to disturb the sitting arrangement. ये सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना But चाहते। we are trying to get the young brothers to come forward. लेकिन हम चाहते हैं कि जवान भाई जवान बहन आगे आकर बैठ सके। So that there will be good engagement as we do the study और जैसे of the scriptures. जब हम अध्ययन करने लगेंगे तब हम आपके साथ एक मुलाकात की तरह बातें कर सकते हैं। So let us now read from the book of Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे। We are going to read only from verse 1 up to verse 7. 1 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। Please follow in your Bibles. अपने अपने बाइबल खोल कर उसमें से पढ़िए। We are only 7 verses. We are going to read it twice. Once in English, once in Hindi. So please follow carefully. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 7 वचन पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी में पढ़ेंगे, और अब सब अपने अपने बाइबल में कृपया खोलकर पढ़िए। By that we will understand
in what context that Paul the apostle has said what he has said in verse 8, which is our theme verse. हमारा जो शीर्षक वचन है, जो 8वें वचन में लिखा है, वो किस संदर्भ में पौलुस लिखता है, उस बात को हम समझ पाएंगे. So we are reading the introductory passage 1 to 7. 1 से लेकर 7 वचन तक हम उसके शुरुआती भाग को हम पढ़ रहे हैं. Please follow in your Bibles. अपने अपने बाइबल खोल कर देखिए. Train just passed by ट्रेन अभी निकल कर चला गया, and we have no train to catch. हमको तो ट्रेन तो पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, So जल्दबाजी we नहीं. are going to read it slowly, इसलिए हम उसको धीरे से पढ़ेंगे, trying to understand. समझ कर पढ़ेंगे. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed, is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. हम हिंदी में पढ़ेंगे. फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 1 से 7 वचन. इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो. वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है. कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ. यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ. 8वें दिन मेरा खतना हुआ. इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ. व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. The first few seconds we are going to remain silent. At that time, please move forward. Children of the Sunday school age will go to your children's classes. प्रार्थना करने से पहले कुछ क्षण के लिए हम शांत रहेंगे. छोटे बच्चे उठकर संडे स्कूल क्लास में अब चले जाएंगे और जवान लोग उठकर आगे की तरफ आकर बैठिए. Let us pray. प्रार्थना करेंगे. जो जो जवान लोग हैं कृपया उठकर आगे आकर बैठिए. जवान भाई जवान बहन आगे लाइंस में आइए. बड़े लोग थोड़ा पीछे और साइड में हटिए. Thank you. Let us now concentrate our minds on prayer. आइए हम प्रार्थना में अब समय बिताएंगे.
Let us think of what we have read. जो वचन हमने पढ़ा था उसके बारे में हम सोचेंगे। Let us ask the Lord, ask God to give us understanding of our theme verse. और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो शीर्षक वचन प्रभु ने हमें दिया उसे समझने में हमारी सहायता करे। Now let us quieten ourselves. हम अपने आप को शांत करेंगे। May it be a genuine prayer. एक सच्ची प्रार्थना हम करेंगे। Our gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for inviting us here and calling us to come and be together for this time of Bible study. इस बाइबल अध्ययन के समय में हम सब आकर यहाँ बैठ सके, ऐसा आपने हम सबको बुलाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। O God, as we come in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में जब हम आकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, we come thinking of Him, हम उनके बारे में सोचते हुए आए हैं। how He died on a cross to pay the penalty of our sins, कैसे कलवरी के क्रूस पर हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने प्राण दे दिया, how He was buried and how He rose again the third day. कैसे वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। We come in the name of such a great Savior. ऐसे महान उद्धारकर्ता के नाम से हम आते हैं प्रभु जी। We thank Thee, O God, that Thou hast planned our salvation so that we could be forgiven of our sins and we could be your children. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उस उद्धार की योजना के लिए कि हमारे पापों की क्षमा हो सके और हम आपके संतान कहलाए जाए। Now, loving Father, we thank Thee for the presence and the ministry of the blessed Holy Spirit. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए और उनके आवाज आशीष के लिए। We pray for a gracious and good work of the Holy Spirit in our hearts. अनुग्रह से भरा और अच्छे काम का पवित्र आत्मा का काम हमारे हृदय में हो सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Giving us understanding of Thy word. आपके वचन का समझ हमको दे सके। Giving us a desire to read and study spiritual truths. आपकी आत्मिक सच्चाइयों को पढ़ने में, समझने में हमारी समझ को खोल सके। Make this time, O Lord, a very useful, profitable time. ये समय प्रभु जी बहुत ही लाभदायक और उपयोगी समय हो सके। We want to be very genuine in our love for you. आपसे प्रेम करने के विषय में हम बिल्कुल खरे पाए जाए प्रभु जी। We want to be very genuine in our daily walk with you. आपके साथ हर दिन चलने के विषय में हम बिल्कुल खरे पाए जाए प्रभु जी। So Lord, we pray that the study of the word may lead us there. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को पढ़ने के द्वारा हम उधर पहुंच सके। Lord, we want to know more about the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पहचान के ज्ञान की उत्तमता को हम जानना चाहते हैं प्रभु जी। We pray that you will reveal Thy Son to us. आपके पुत्र को आज हम पर आप प्रकट करेंगे, ये हम प्रार्थना करते हैं। We give Thee thanks and praise in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. The book of Philippians is a letter written by Paul the Apostle. फिलिपियों की पत्री जो है ये एक पत्री है जिसको पौलुस ने फिलिपियों को लिखा था। While languishing in prison, he thought it necessary to write such a letter. वो कारागार में बंदी था लेकिन उसने सोचा ऐसा पत्र लिखना बहुत ही जरूरी है। I believe the reason behind this writing was the importance of this church at Philippi. ये खत लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि फिलिपी शहर में जो कलीसिया थी उसके विषय में। You may be aware that the church at Philippi was the first ever European church. यूरोप में फिलिपी कलीसिया जो है वो सबसे पहले कलीसिया थी, ये बात आप जानते होंगे। Paul the Apostle's missionary work was originally firstly done in
Asia region. पौलुस ने अपने सुसमाचार की सुवार्तिक का जो काम उन्होंने किया था, आसिया में वो काम पहले शुरू किया था। But we read in the book of Acts that God called him now to cross over to Europe. और हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाकर यूरोप के जगह में भेजा। And he went by ship. और वो नदी और समुद्र की यात्रा में, जहाज की यात्रा में वो गए And थे। they arrived at Philippi. और वैसे फिलिप्पी को वो पहुंच चुके थे। And if you read Acts chapter 16, you will be able to get some background information as to how this church was established. फिर तो के काम 16 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें वहां पता चलेगी कि कैसे फिलिप्पी कलीसिया का आरंभ हुआ था। After preaching the gospel, सुसमाचार को प्रचार करने के बाद people's hearts were opened by God. और परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को खोल दिया And a house church began. और घर घर कलीसिया इकट्ठा होना शुरू हो गया। So now years had passed. अब बहुत साल गुजर गए। Now Paul was imprisoned and he was in Rome. और अभी पौलुस पकड़ा गया और जेल में वो डाला गया और रोम में उसको रखा गया था। From there he was writing the letter. और वहां से ये खत को वो लिखता है। Now you need to understand ये बात समझना जरूरी है that through what has happened here, that there are several realities that we have to understand. यहाँ पर जो बातें बीती है, यहाँ पर कुछ सच्चाइयां हैं जिनको हम जानना जरूरी है। One is that your faith in Christ might lead you to prison. एक पहली सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप कारागार में जा सकते हैं। Not only then, उतना ही नहीं, but even today there are thousands of people at this very moment sitting in prison cells because they believed in the Lord Jesus Christ. उन दिनों की बात ही नहीं, लेकिन आज के दिनों में भी आज भी बहुत से लोग आज कारागार में डाले गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। Recently we read of a report of a 2-month-old baby, a boy was sentenced to life imprisonment. पिछले दिनों में हम कुछ ऐसा समाचार पढ़ रहे थे कि 2 महीने का छोटा बालक उसको सारा जीवन कारागार की शिक्षा सुनाई गई। These kind of things were unheard of. ऐसी बातें जिनको कभी हमने सुनाई नहीं। But because of the rule and the law in that country, क्योंकि उस देश का नियम ऐसा लिखा गया है that if anybody is found with a Bible, कि किसी के पास भी यदि बाइबल पाया जाए believing in the Lord Jesus and proclaiming it, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और दूसरों को बताते हैं, that person's father should go to jail. उस व्यक्ति का पिताजी को जेल में डालना है। That person should go to jail. वो व्यक्ति भी जेल में जाएगा। And if that person has a son, that son also should go to jail for lifetime. और यदि उसका बेटा भी है तो बेटा भी सारे जीवन भर के लिए जेल में जाएगा। It's a very sad, heartbreaking situation. ऐसी हालत, ऐसा समाचार कितना दुखदायक है। But that is the law of the country. लेकिन उस देश का नियम ऐसा है। So, a 2-month-old baby had to go to prison for life. और 2 महीने का छोटा बालक सारे जीवन भर कारागार शिक्षा पाकर उस जेल में चला गया। This is a terrible situation. ये बहुत ही भयंकर हालत है। But now, you can just imagine how these people who suffer such kind of persecution are willing to take that risk, willing to take that persecution. आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितना हिम्मत और हौसला दिखाते हैं कि ऐसे दुख भरे परिस्थिति में क्लेश और निंदा उठाने को तैयार है। There seems to be a very driving force that is within them, that is driving them to do this kind of thing, risky things. और ऐसे खतरे से खेलना, ऐसा करने के लिए उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो उनको विवश करती है। Now Paul was an older man. पौलुस तो एक वृद्ध व्यक्ति था। He was sitting in prison. वो भी जेल में कारागार में बैठा है। In fact, sometimes he was chained to another soldier. इससे पहले तो दूसरे सैनिक के साथ उसको भी जंजीर में जकड़ा गया था। But he apparently had accepted it. और वो तो अंगीकार कर लिया था उस हालत को। He had not thought it as a very strange thing, a thing that he never expected. उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये तो बहुत अचंभित बात सी हो गई, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। As a young person, I want you to face this reality. आप जवान हैं और मैं चाहता हूं कि सच्चाई को आज आप सामना कर सके, जान सके। Believing in the eternal Son of God is
a risky decision. परमेश्वर के अनंत पुत्र पर विश्वास करना ये खतरे का खेल है, But लेकिन- Paul seems to tell us that it's worth doing. लेकिन पौलुस कहता है ऐसा करना बिल्कुल योग्य है और लायक है। That is the message of the theme verse. और यही हमारे शीर्ष का वचन है, The excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, Surpassing worth of knowing Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही मेरे लिए सबसे ऊंची बात है। That is what another translation says. दूसरे भाषांतर में ऐसा हम कह सकते हैं, Surpassing worth of knowing Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सबसे कीमती है। So Paul is now telling that to the Philippian believers. फिलिप्पी कलीसिया से पौलुस ये बात कहता है, And through that letter he is speaking to us. और उसी पत्री के द्वारा आज हमसे भी बात करता है। In fact, God is using those scriptures, those writings to bring that message to us. और इन्हीं पत्र के इन वचनों को लेकर प्रभु आज हमसे बात करता है। The surpassing knowledge or surpassing worth of the knowledge of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पहचान सबसे उत्तम बात है, It's so valuable. It's so valuable बहुत ही कीमती, बेशकीमती बात है, because it opens the door to eternal bliss. क्योंकि अनंत काल के युग की ओर वो द्वार खोलती है। I don't have to come and tell you that this life, I don't have to come, but you know it already and tell you that this world, this life is very temporal. आप तो ये सारी बातें जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन जो इस धरती पर है बिल्कुल तात्कालिक है। Something permanent is coming. एक ऐसी बात आने वाली है जो Something- अटल है, Something eternal is coming. और कुछ आने वाली जो बात है वो अनंत काल की है। So we have to now make a choice. अभी हमको एक चुनना है, Are we going to live for the temporal life in this world for 60, 70, 80 years? क्या 60-70 साल के तात्कालिक जीवन के लिए हम जीवन जिए, Or are we going to make a choice so that we could be prepared for eternity, that is time without end? क्या हम दूसरी बात को चुने कि हम अनंत काल के लिए तैयार किए जाए जहां समय का अंत है, समय का कोई अंत नहीं है। Our mind is very deceitful. हमारा मन जो है धोखेबाज है। Our mind is trying to tell us, just forget about it. हमारा मन कहता रहता है नहीं नहीं वो सब भूल जाओ, Only you live for this time. बस आज के लिए जियो, इस युग के लिए जियो। But with us, we have to now somehow overcome this thought और इस विचार को अभी हम जयवंत करना है, जयवंत होना है, and seek for that which is eternally valuable. और उस बात की खोज में लगे रहना है जो अनंत काल के लिए वो कीमती है। So this is the basic idea in the passage. तो इस वचन के भाग में ये संदेश उन्होंने लिखा है। Paul the apostle was writing this letter to that first European church. पहले यूरोप के कलीसिया को पौलुस ये पत्री को लिखता है। The church well established. ये कलीसिया बिल्कुल अच्छे से स्थापित You है। can see chapter 1 verse 1 please. पहला अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ सकते हैं। Can you see chapter 1 verse 1? फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय और उसका एक वचन पढ़िए। There you find Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। So you find a church with bishops, that means the elders, कलीसिया- the leaders were there, कलीसिया में अध्यक्ष है, अगुवाई है, अगुवा करने वाले हैं, and the deacons who were there. और यहाँ पर सेवक भी है। And that means that church was in a very good established church, मतलब पूरी रीति से वो स्थिर कलीसिया थी, in good order. अच्छे क्रम में चल रहा था। But we find there had to be this warning given to these believers. लेकिन ऐसे विश्वासियों के लिए भी कुछ चेतावनियां लिखी गई है।
He is telling in this opening verse of chapter 3. तीसरे अध्याय के पहले वचनों में वो कहता है, Now come with me, please. Open your Bible. सभी अपने अपने बाइबल खोलिए। Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय। Whenever I say please look at the Bible, let us look at the Bible. जैसे मैं कहूंगा बाइबल की तरफ देखिए, कृपया अपने बाइबल खोलकर बाइबल की तरफ देखिए। He is telling in verse 2, beware of dogs. दूसरे वचन में कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। Now this is a very strange kind of exhortation. ये तो बहुत ही अलग प्रकार का उपदेश है। Beware of dogs is a notice that you find in some big houses यहाँ on the gate. कुत्तों से चौकस या कुत्तों से सावधान रहो बड़े बड़े बंगलों के दरवाजे पर लिखा रहता है। That don't come inside without permission, dogs will bite you. बिना पूछे अंदर मत आना नहीं तो कुत्ता काट लेगा, ऐसा लिखा रहता है। But what is the biblical meaning? लेकिन बाइबल में इसका अर्थ क्या है? Beware of dogs is people who go back to their old sins. कुत्तों से चौकस रहो मतलब उन लोगों के बारे में लिखा है जो वापस अपने पाप के पास मुड़कर जाते हैं। After you have become believer आप विश्वासी होने के बाद, and you have fellowship, आप संगति करने के बाद, but now you are given this bad example by somebody going back to their old way of living. और ऐसा उदाहरण आपका जीवन हो गया कि वापस मुड़कर पुराने जीवन की ओर चले गए। Beware of such people. ऐसे लोगों से सावधान, Do not go after them. उनके साथ उनके पीछे मत जाना, Do not make them your close friends. हम उनको अपना दोस्त मत बनाना। We need to have this warning given to us. ऐसा चेतावनी हमें दिया गया है। Beware of evil workers. बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। It can mean many things, उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, but mostly the people who might teach wrong doctrines. और ऐसे लोग हो सकते हो, ऐसे लोग हैं जो गलत उपदेश देते हैं। The doctrines that are in the word of God are true and precious. जो सिद्धांत प्रभु के वचन में है वो बिल्कुल सच्चे और खरे हैं। But those who come among believers and try to put into our minds wrong things. लेकिन कुछ लोग हैं विश्वासियों के बीच में आकर दिमाग में गलत सी बातें बोझ देते हैं। Beware of such people. ऐसे लोगों से सावधान। Now today this is very relevant to us आज ये बिल्कुल हमारे से सुपरिचित सी बात है, because we have access to such information of evil workers. क्योंकि ऐसे बुरे काम करने वालों के साथ मिलने जुलने के बहुत सारे यंत्र हमको मिल चुके हैं। Many of us use a mobile phone. हम में से बहुत से लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। Many of us have access to social media platforms like the YouTube और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम देखते ही रहते हैं। Anybody can post anything there. और वहां पर कोई भी कुछ भी डाल सकता है। So both good and evil are found there. और वहां पर अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। And we have easy access to them. और हम आसान से दोनों को देख सकते हैं। Now look at the danger. और अब खतरा को देखिए। There are many preachers who seem to be holding a Bible in their hand and preaching. बहुत से प्रचारक दिख रहे हैं जो बाइबल पकड़कर वचन सुना रहे हैं। So because we are Bible lovers, क्योंकि हम तो बाइबल से बहुत प्रेम रखते हैं, we might think, oh, this is good. They have a Bible. I must listen to this. और हम सोचते हैं अरे इसके पास तो बाइबल है, मुझे तो जरूर सुनना चाहिए। And that might lead you in the wrong path. और यही बात आपको गलत रास्ते में ले जा सकती है। For a moment our eyes can be blinded. कुछ क्षण के लिए हम अंधे हो जाते हैं। The arguments seem to be very attractive. और ऊपर से देखने के लिए बहुत आकर्षित लगता है। So we might get attracted to that way of thinking. और धीरे धीरे उस प्रकार के सोच विचार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। So this is a very relevant situation. और ये बिल्कुल हम आज के वर्तमान दिनों में देख सकते हैं। Beware of such things. ऐसी बातों से सावधान। Do not follow any kind of teaching that you will immediately identify as something different to what you have already heard. अब तक जो आप सुनते आए हैं उससे यदि वो उपदेश थोड़ा भी अलग लगे बिल्कुल सावधान रहना। You have heard many messages आपने बहुत संदेश सुने हैं। in the church fellowship. कलीसिया के संगति में आपने बहुत सारे वचन सुने हैं। Here I hear something new. आज मैं एक नई बात सुना हूं। What is this? ये क्या है नई बात? Now don't try to follow it without verifying it. और उसको जांच पड़ताल किए बिना उसके पीछे मत जाना। You can come and discuss it with
the spiritual leaders. आप आकर आत्मिक अगुओं के साथ बैठकर उसके बारे में बात करना है, Otherwise, you can be misled. नहीं तो आप गलत रास्ते में चले जाएंगे। You are innocent. आप तो बिल्कुल निर्दोष है, You have not done anything wrong. आपने तो गलत नहीं किया है, You only thought that this was good teaching. आपने सोचा कि शायद अच्छी उपदेश है, But this teacher is emphasizing on something that is not right. लेकिन ये प्रचारक जो है एक चीज पर जोर लगाकर बोल रहा है जो मुझको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। This is very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है। So, finally, that will not have the approval of God. और आखिर में परमेश्वर की ओर से वो ग्रहण योग्य संदेश नहीं है। So, we are not against social media. हम सोशल मीडिया के खिलाफ तो नहीं है, But what we are saying is that you need to verify every information, new information that you receive. इसलिए हम कहते हैं जो जो नई नई बातें आप सुन रहे हैं उसको जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। Regarding the Bible. बाइबल के विषय में If you read, if you listen to any new information, यदि आप कोई नए संदेश को आप सुनते हैं and you will find such information will flow into your social media whenever you open it. और एक बार जब उस संदेश को सुन लेते हैं, वो नई बात को सुन लेते हैं, उसके बाद से उन बातों का प्रवाह आपके सोशल मीडिया में आ जाता है, That makes the trouble and the risk double. और वो तो समस्या शुरू हो गया और समस्या तो दोगुना हो गया। Let us be wise. हम बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान बनना है। You young people have a greater challenge to face than the challenges we faced as young people. हम जब जवान थे और जो चुनौतियां हमने सामना की, उस चुनौतियों से बढ़कर बड़ी चुनौतियों को आप सामना करना है। Especially one aspect of the challenge is the challenge of the social media. और उसमें से एक सबसे बड़ी चुनौती ये है सोशल मीडिया की चुनौती। So you need to verify everything, and then only if it is approved of God according to the scriptures, you must ever listen to such things. इसलिए हर एक चीज का जांच करना है, यदि वचन के अनुसार है तभी उस बात को हम सुन सकते हैं। Beware of evil workers. उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। Then came the third warning. और तीसरा चेतावनी। What is the third warning? तीसरा चेतावनी क्या है? Beware of the concision. उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। Now that had a underlying meaning. यहाँ पर छिपा हुआ एक संदेश है। That meaning is then given, explained in the next verse. उसका अर्थ जो है अगले वचन में लिखा गया है। For we are the circumcision which worship God in the spirit. क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। This is about the Jewish influence. यहाँ यहूदी के दबाव के बारे में लिखा है। The Jewish people carried the Bible. यहूदी लोग भी बाइबल पकड़ते हैं। At that time they had the Old Testament. उन दिनों में उनके पास पुराना नियम था। And even in Philippi there were Jewish people. और फिलिपी शहर में भी यहूदी लोग थे। They claimed to have a knowledge of God. और वो कहते थे कि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है। And they say they have come to now Christians. अभी वो मसीह लोगों के पास आए। And Christians also now carry the Old Testament at that time. और उन दिनों में मसीह लोगों के पास भी पुराना नियम ही था। They were reading at every church gathering. और हर कलीसिया जब इकट्ठा होती थी उस पुराने नियम को पढ़ रहे थे। So now these people, the Jewish people said, now look at what the Bible says. और अभी यहूदी लोग जो थे वो आकर कहने लगे, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। And they tried to tell them that if you want to become a follower of God, believer in God, you must have circumcision. और वो आकर कहने लगे कि यदि आपको परमेश्वर का विश्वासी बनना है, विश्वास करना है, उनके पीछे चलना है, तो आपको खतना करना बहुत जरूरी है। That was an ordinance given to Abraham. वो तो अब्राहम को दिया हुआ एक रीति था। Are you children of Abraham? क्या आप अब्राहम के संतान हो? They will say yes. वो कहते थे हाँ हम हैं। But when they say yes, जब वो कहते थे हम हैं, they meant the principle of faith. और वो विश्वास की बात वो करते थे। Abraham believed in God, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, and it was counted unto him for righteousness. और वो बात उसके लिए धार्मिकता के लिए गिनी गई। By that aspect only we are children of Abraham. और उस दृष्टिकोण से देखे तो हम अब्राहम के संतान हैं। That means we are like Abraham. मतलब हम भी अब्राहम की तरह है। We are also justified by our faith. हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। We believe
हम विश्वास करते हैं And God will call us righteous people. और प्रभु हमको धर्मी बुलाता है। On that principle. उस सिद्धांत से बात करें तो, But now they will say, लेकिन अभी वो कहते हैं no, no, to be saved, to know God in a living way, you must do these ritualistic things. नहीं नहीं, आपको उद्धार पाना है, प्रभु को जानना है, तो आपको ये रीति रिवाज करना पड़ेगा। I know that young people, you don't like rituals. मैं जानता हूँ आप जवान लोग को रीति रिवाजें पसंद नहीं है। You are very correct. हाँ, बिल्कुल सही है। Rituals cannot gain you anything, any place in God's presence. और ये रीति रिवाज करने से परमेश्वर की उपस्थिति में आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। It is now spiritual. लेकिन ये तो आत्मिक बातें हैं। Not ritualistic, but spiritual. अब ये रीति रिवाज नहीं, लेकिन आत्मिक बातें हैं। So Paul is saying, पौलुस कहता है, who are the circumcision? खतना वाले कौन है? We are the people who of circumcision, हम तो हैं, हम खतना वाले हैं, which worship God in the spirit. जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। Not necessarily done any cutting of the skin. और कोई चमड़ी के खतना के द्वारा किया हुआ खतना नहीं है। But the Jewish people were insisting on that. लेकिन यहूदी लोग उस खतरे की बात कर रहे थे। So the first European believers were now in some kind of a doubt. अभी यूरोप में जो कलीसिया के लोग थे, वो भी संदेह में पड़ गए। Oh, is this true? क्या ये सच बात है? These people are holding the Bible in their hand. ये लोग भी तो बाइबल पकड़ कर आए हैं। They are Abraham's children. ये तो अब्राहम के संतान है। Now what shall we do? अब हम क्या करें? To put to rest that kind of doubt, only Paul was writing. ऐसे संदेहों को शांत करने के लिए पौलुस इस पत्र को लिखता है। He says, circumcision now means you need to worship God in the spirit. खतना मतलब परमेश्वर को आत्मा में आराधना करना And rejoice in Christ Jesus. और मसीह यीशु पर घमंड करना। See the meaning of circumcision now to us. खतना का अर्थ देखिए। How can you belong to that group of people being circumcised? उस झुंड के साथ हम कब शामिल होंगे जिन्होंने खतना किया है? Not by physically doing it. ये कुछ शारीरिक रीति से करने वाला नहीं है। What are the three qualifications given? यहाँ पर कौन सी बातें लिखी गई है? Worship God in the spirit. पहली बात है आत्मा में आराधना करना। You got it? What is the second? दूसरी बात क्या है? Please look at it. बाइबल में देखिए। Yes, look at it, please. You look at it. तीसरे वचन में Rejoice in Christ Jesus. मसीह यीशु पर घमंड करना। What is the third one? तीसरी बात क्या है? Have no confidence in the flesh. शरीर पर भरोसा नहीं करना। See, three things are mentioned. तीन बातें लिखी हैं। So, let us now be at rest. अभी हम आराम करेंगे। We don't have to do anything ritualistically. अभी हमको रीति रिवाज के तौर से कुछ नहीं करना है। There were separate rules given to the Jewish people. यहूदी लोगों के लिए अलग अलग नियम तो दिए गए थे। But now to us who are of the Gentiles, लेकिन हम जो अन्य जातियों से हैं, we have to worship God in the spirit. हमको परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना है। Rejoice in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है And have no confidence in the flesh. और शरीर पर भरोसा नहीं रखना है। That means by our own effort, we cannot do anything. That's what we know now. इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हम कुछ नहीं कर We सकते। cannot gain heaven. हम स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। It is now by fellowship with the Lord Jesus in the spirit. ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा में संगति हम कर सकते हैं। So he is now going step by step explaining. एक एक कदम समझाते हुए आगे बढ़ रहा है। But he himself was a Jew. वो खुद तो यहूदी था। Paul was a Jewish man पौलुस तो यहूदी था who was born again one day on the way to और Damascus. दमस्कस को जाने के मार्ग में उसका उद्धार हो गया। By a personal encounter with the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात हुआ, उस दिन उसका जीवन बदल गया। That is true salvation. यही सच्चा उद्धार है। Now he is saying to us, अभी वो हमसे कहता है, though I might also have confidence in the flesh. पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। I am a Jew. मैं तो यहूदी हूँ I have all the qualifications as a Jewish person. और यहूदी होने के लिए जो भी बातें आवश्यक है वो सब बातें मेरे अंदर है। Look at verse 5. 5 वचन देखिए। Circumcised the 8th day 8वें दिन तो मेरा खतना हुआ, of the stock of Israel, इज़राइल के वंश का हूँ, of the tribe of Benjamin, बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, and Hebrew of the Hebrews. इब्रानियों का इब्रानी हूँ, As touching the law, a Pharisee. व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ, Concerning zeal,
persecuting the church. उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला हूं। Now at that time, if you persecute, a Jew is persecuting the Christian believers, it was considered true zeal. और यदि उन दिनों में यदि कोई यहूदी एक कलीसिया को सता रहा है, वो कहते थे ये सच्चा उत्साह है Among Jewish people. यहूदियों के बीच में। So he had that also. वो भी था उनके अंदर। He was like that in the beginning. उन दिनों में वो ऐसा जीवन जीता था। And then the righteousness which is in the law, blameless. व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। He was keeping the law to the very letter. और व्यवस्था को तो अक्षर अक्षर पालन करता था। As touching the law, a Pharisee. और यदि व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी था। Pharisees had so many laws that they were keeping. और फरीसियों के पास तो बहुत सारे नियम थे जिनका पालन वो करते थे। Now he is coming to the point. अभी विषय पर आता है। He is telling that I have all these qualifications as a Jew. और यहूदी कहलाने के लिए जो भी बातें आवश्यकता थी वो सारी बातें मेरे अंदर है। But now I have realized one thing. लेकिन आज मैं एक बात जान गया, All these things are now useless. ये सारी बातें व्यर्थ है। I have one thing that is far better than these things. और एक बात है जो इन सारी बातों से बढ़कर है। What was that? वो बात क्या है? The knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की ज्ञान। So, excellency of the knowledge of Christ has many faceted meanings. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के बहुत सारे अर्थ है। One is to say that I have such a valuable thing with me. पहला अर्थ ये होता है कि मेरे पास बहुत ही बेशकीमती चीज है। Surpassing worth of the knowledge. और ज्ञान के सारे उत्तमता से बढ़कर ये बात मेरे पास है। And that what God wanted from me, और प्रभु मुझसे क्या चाहता है I have got. मुझको मिल गया है। That is a very clear cut stand. और यही बिल्कुल स्पष्ट उसका अर्थ है। Now that's what you also must know. और ये आप भी जानना जरूरी है। If you have the knowledge of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान यदि आपके पास है, true knowledge, सच्चा ज्ञान आपके पास है, and actual, real, sincere faith in Him, और सच्चा और खरा विश्वास उन पर है, you have the very best. आपके पास सबसे उत्तम बात है। So you have the thing that is so worth and so valuable than any other qualification. और इस दुनिया के सारे क्वालिफिकेशन से बढ़कर उत्तम और श्रेष्ठ बात आपके पास है। But now he is telling further आगे बढ़कर कहता है that I have suffered the loss of those things. और उन सारी बातों का हानि मैंने उठाया। So it is not having both. दोनों नहीं रखा है। It's not having both qualifications. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मैं अपने पास रखता हूँ। You have to choose one. उन दोनों में से मुझको एक ही चुनना है। So he says, वो कहता है I have chosen the knowledge of the Lord Jesus. मैंने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को चुन लिया है। I have rejected the other. मैंने दूसरी बात को त्याग दिया है। Rejected the other. दूसरी बात को त्याग दिया है। How do we know that? कैसे जान सकते हैं? In verse 8, last line. 8 वचन की आखिरी बात में, I do count them but dung. मैं तो उन्हें कूड़ा समझता हूँ। Dung you reject. कूड़ा तो आप इनकार ही कर देते Now हैं। how about you? आपके बारे में क्या बात है? Now we also now are like Jewish people. हम भी आज यहूदी लोगों की तरह है। My father, you can say, my father was a believer. आप कह सकते हैं मेरा पिता विश्वासी है। What are you talking? My grandfather was a believer. और क्या बात कर रहे हो? मेरे दादाजी भी विश्वासी हैं। So we have the Bible in our hands. और हमारे हाथ में बाइबल है। We have had family prayer at home. हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है। I was baptized मेरा तो बपतिस्मा हुआ as a है। teenager. मैं तो जवानी में ही I बपतिस्मा have many लिया। qualifications. बहुत सारे क्वालिफिकेशन है। I know choruses and songs. मेरे को कोरस भी आते हैं, गीत भी आते हैं, I know even memory verses. मेमोरी वर्सेस भी आते हैं। Some of you, I know, you can recite verses in your by memory. और मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग हैं जो वचनों को याद किए हैं और बिना देखे ही बोल सकते हैं। But do you have the knowledge of the Lord Jesus Christ? लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपके पास है? All the other things become now useless. सारी बातें अभी व्यर्थ हो चुकी है। They cannot give you eternal life. ये सारी बातें आपको अनंत जीवन नहीं दे सकती। Religion cannot give you eternal life. धर्म आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। When you fill up a form, जब आप एक फॉर्म को भरते हैं, they give you
to answer the question, what is your religion? उसमें एक कॉलम आता है, आपका धर्म क्या है? You say Christian. आप कहते हैं क्रिश्चियन। That cannot give you eternal life. वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। You need to know the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना जरूरी है। So Paul the apostle was just emphasizing this truth. तो बार बार इस सच्चाई पर जोर लगा रहा था प्रेरित पौलुस। Jewish people were the chosen people of God. यहूदी लोग प्रभु के द्वारा चुना हुआ वंश थे। But whatever they have been doing now, according to the instruction of God, had to be laid aside. और जो जो वचन में नियम लिखे थे उस नियम का पालन तो कर रहे थे, उन सारी बातों को बगल में रखना था। They had to now come to the knowledge of the Lord Jesus. उनको प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के पास आना था। Now this is the most important thing. यही सबसे प्रमुख बात है। This is what is necessary for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए कौन सी बात जरूरी है? Have you got it? क्या आप समझ गए हैं? Personal knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानना और उस ज्ञान को रखना। So that is why he says the excellency, इसलिए कहता है उत्तमता, the कहता है high value, सबसे ऊंचा कीमत surpassing worth, और सब कीमत से ऊंचा है वो, because that brings us all the eternal blessings. क्योंकि अनंत काल की सारी आशीषों को वो ले आता है। If you practice religion यदि आप धर्म का अभ्यास करें, throughout your lifetime, आपके जीवन भर अभ्यास करें, you will get nothing. आपको कुछ नहीं मिलेगा। But if you know the Lord Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे, you will get everything, आपको सब कुछ मिलेगा, eternally valuable. अनंत काल के लिए मिलेगा। So this is now the beginning of the Bible study. This is the introduction. ये तो बाइबल स्टडी का इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है। Now we are going to look at some scriptures अभी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे to understand some more details about this knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के इस ज्ञान के बारे में और कुछ वचनें हम पढ़ेंगे। I'm going to just try to mention 5 things, 5 important things about the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के बारे में 5 प्रमुख बातें मैं बताना चाहूंगा। Number 1, पहली बात, this knowledge of the Lord Jesus Christ is decided by God the Father. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की पहचान जो है, ये परमेश्वर पिता के द्वारा नियमित किया गया है। Now look at that statement. इस स्टेटमेंट को समझिए। It is decided by God the Father. ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, Whether you are going to get that knowledge of the Lord Jesus or not. ये परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त किया गया कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करोगे या नहीं करोगे। Now that might bring a question in your mind. अभी ये आपके मन में एक संदेह पैदा होगा। That's okay. वो ठीक है, I also have the same question. मेरे अंदर भी वो प्रश्न है। You don't have to now write that on a piece of paper and put in the box. और आपको एक पेपर पे लिख कर बॉक्स में डालने की कोई जरूरत नहीं। Why and how and wherefore. कैसे, क्यों और कब, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। But we read in the Bible लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं that God decides. परमेश्वर चुनता है, नियुक्त करता है। Father decides whether knowledge of the Son, the Lord Jesus Christ, should be given to you and to me. वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, आपको देना है या नहीं देना है, वो पिता चुनता है। Let us face up to reality. और उस सच्चाई को आज हम समझ ले, Let us think about God as we should. और परमेश्वर को जैसे हम सोचना चाहिए वैसे आज हम सोचे। Do not try to reduce God into a size that you can control and manage. और तुम जिस परमेश्वर को नियंत्रण कर सकते हो उतना छोटा बनाने को मत देखना। God is God eternal. परमेश्वर अनंत काल के लिए वो परमेश्वर ही है, God is not like any one of us. हम में से किसी की तरह भी वो नहीं है। Please do not think that he is like one of us. और अब सोचना नहीं कि परमेश्वर हम जैसा ही है। No, he is the creator God. वो तो सृष्टि करता है, He is the designer God. He designed everything. और उसने सबको सृष्टि की, सब निर्माण किया, He is also the deciding God. और वो निर्णय भी लेता है। Let us read Galatians chapter 1 गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय and verse 15 and 16. गलती पहला अध्याय 15 और 16 वचन। Galatians chapter 1 verse 15 and 16. गलतियों की पत्री पहला अध्याय 15 और 16 वचन। But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his son in me. परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया
और अपने अनुग्रह से बुला लिया। This is how Paul was describing his salvation experience. और पौलुस अपने उद्धार के अनुभव को इस तरह बताता है। He is not telling, I was saved because I believed. और मैंने विश्वास किया इसलिए मेरा उद्धार हुआ, ऐसा नहीं कहता है। He is not saying, I am saved today because of my effort. और वो आज ये नहीं कह रहा मैंने बहुत प्रयास किया इसलिए आज मेरा उद्धार हुआ। He says, God decided to reveal his son. लेकिन वो लिखता है परमेश्वर ने ठहराया कि मैं उसके पुत्र को ग्रहण कर सकूं। When it pleased God जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ to reveal his son to me. कि अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करे। Now please look at verse 15, all of us. 15 वचन देखिए, 15 वचन। Mother's womb is mentioned there. यहाँ पर माता का गर्भ ऐसा लिखा है। We all have been in the mother's womb. हम सब haven't we? माँ के गर्भ में थे कि नहीं थे? Can you remember those days? क्या वो दिन आपको याद है? I was in the mother's womb. मैं माँ के गर्भ में था। No, we cannot remember anything. वो तो कुछ याद नहीं आएगा। Outside the mother's womb also we can't remember now. माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद भी कुछ याद नहीं आएगा। But Paul says, लेकिन पौलुस कहता है from my mother's womb God had separated me माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। for this particular thing. इस विषय के लिए ठहराया That is to reveal his son to me. कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। I want you to embrace this eternal truth. इस अनंत काल के सच्चाई को ग्रहण कर लीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। The eternal truth that is coming out of this verse is the sovereignty of God. इस वचन के द्वारा जो सच्चाई बाहर आती है वो ये है परमेश्वर की सार्वभौमिकता। God has the ability and the right to decide. परमेश्वर के पास हक है और सामर्थ्य भी है कि वो चुन सके। Now I am not asking you not to question it. मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रश्न मत करो। We may ask, how can it be? आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। But I am telling you that there is no reason by way of that question to stop believing in God. और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के तर्क वितर्क करने के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना ये बिल्कुल गलत बात In है। fact, this is the reason why we believe God. लेकिन ये ही कारण है कि हम उस पर विश्वास करें। This is the reason why we worship God. यही कारण है कि हम उसकी आराधना करें। He has all power to decide. और उसके पास चुनने की सारी सामर्थ्य है। He has all right to decide. और उसके पास चुनने का पूरा हक है। Only such a God we must worship, और right? ऐसे ही परमेश्वर की तो आराधना करना चाहिए। If you want to worship any other limited person यदि कोई और भी उससे भी शून्य व्यक्ति मतलब who छोटे has व्यक्ति no को, rights, who has no power, क्या ऐसे व्यक्ति की आराधना कर सकते हैं जो ना चुन सकता है ना उसके what a पास कोई foolish, शक्ति है। what a foolish thing. कितनी मूर्ख बात हो गई। Then that God will be like us only. तब तो वो तो हमारे जैसा ही होगा। But true and the living God is different. लेकिन सच्चा जीवता परमेश्वर बिल्कुल अलग है। He is so great, वो बहुत महान है, so different to us. वो हमसे बहुत अलग है। So, first truth about the knowledge of the Lord Jesus Christ is, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की पहली बात यह है it is decided by the Father. ये परमेश्वर पिता के द्वारा ठहराया गया है। In every case, हर संदर्भ में if you are saved today, यदि आज आपका उद्धार हुआ है it is because He decided. क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है। It takes time to study this subject at length. इसको गंभीरता से और पढ़ने और ध्यान करने के लिए बहुत समय चला जाएगा। This may not be the right time to do that. लेकिन आज वो समय नहीं है कि हम इस पर ध्यान करें। The more you study जितना ज्यादा पढ़ोगे about the sovereignty of God, परमेश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में, greater will be your devotion to Him. और आपका जो प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति है ज्यादा हो जाएगा। Because you know how limitless He is. क्योंकि आप जान जाओगे वो असीमित परमेश्वर है। And your worship become more meaningful. और आपका आराधना और भी अर्थवंत हो जाएगा। He is the decision maker. वो चुनने का हक रखता है। Do you worship Him like that? क्या हम उसकी आराधना ऐसा करते हैं? Paul worshipped God like that. पर पौलुस ने ऐसे आराधना किया परमेश्वर का As the one who decided to reveal His Son in me. कि उसने चुना, उसने निर्णय लिया कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। Look at the story of Abraham. अब्राहम की कहानी को देखिए, What happened to him? उसके जीवन में क्या हुआ। Acts chapter 7. फिर तो के काम उसका 7 अध्याय। Look at the story of Abraham. अब्राहम की कहानी को देखिए।
Acts chapter 7 verse 1. प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका पहला वचन। Then said the high priest, are these things so? तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? Verse 2. दूसरा वचन। And he said, men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran. स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। That is what happened to Abraham. अब्राहम के साथ ऐसा हुआ। What happened to him? क्या हुआ उसके साथ? Look at there. वहां देखिए क्या लिखा है। Give me an answer. एक उत्तर दीजिए। Please, simple. Please, everybody get engaged now. देखिए सब आपस में हम चर्चा करना What happened to चाहिए। Abraham? अब्राहम के साथ क्या हुआ? God of glory महिमित परमेश्वर appeared to him. उस पर प्रकट हुआ। So who made the decision? किसने वहां पर निर्णय लिया? God made the decision to appear. परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आज मैं प्रकट होऊंगा। Abraham was an idol worshipper. अब्राहम तो एक मूर्ति पूजक था। His father Terah was an idol worshipper. उसका पिता तेरह भी मूर्ति पूजक था। But God of glory decided to appear to him. लेकिन महिमित परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं आज प्रकट होऊंगा। And God came and one day appeared to Abraham. और एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। That is how it happens. ऐसा ही होता है। Decision does not lie with any one of us. हम में से निर्णय लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। He has to take the initiative. परमेश्वर ही पहला कदम उठाना है। It is quite strange. It is not like how we think. और हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। But it is true. ये लेकिन ये सच्ची बात है। Look at Joshua chapter 24, यहोशू का 24 अध्याय verse 2. दूसरा वचन। Now we are in the Bible study. हम बाइबल अध्ययन में है। Please turn. कृपया करके बाइबल खोलिए। Joshua 24 verse 2. यहोशू 24 अध्याय और उसका दूसरा वचन। Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood of old time, even Terah the father of Abraham and the father of Nahor, and they served other gods. तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महान नद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। They were surrounded by other gods. दूसरे देवताओं से घिरे हुए थे। But then God decided लेकिन परमेश्वर ने एक दिन निर्णय लिया to reveal himself to Abraham. कि अब्राहम को दर्शन दे। That is how everything began. और ऐसे सब कुछ शुरू हुआ। So let us come to this truth now. इस सच्चाई के पास आज हम आएंगे। The knowledge of the Lord Jesus Christ has to be given by the Father, decided by the Father. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता जो है वो पिता के द्वारा निर्णय किया जाना है और पिता द्वारा दिया जाना है। We must hold on to that truth. और उस सच्चाई को पकड़ना जरूरी है। Do not question it because it's useless questioning. ऐसा प्रश्न करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो प्रश्न ही व्यर्थ है। How could God do such a thing? परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? How come that he is able to do it? और कैसे परमेश्वर ऐसा कर पा रहा है? No one of us will be able to answer that question. ऐसा प्रश्न को कोई भी उत्तर नहीं दे सकता Because he is God and we are humans. क्योंकि वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। God had that plan. परमेश्वर के पास एक योजना है। So we accept it. उसको ग्रहण करना जरूरी We है। bow before it. उसके सामने दंडवत करना जरूरी है। So this is the sovereignty of God. ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। There's another word that is connected with sovereignty. सार्वभौमिकता के साथ एक और शब्द जुड़ा है, Election of God. परमेश्वर का चुनना। Some people say, oh, these are very heavy subjects to talk about. ये तो बहुत भारी विषय है, इन पर कौन बात कर सकता है? No, they are not heavy. नो नो, बिल्कुल भारी नहीं है, They are very simple. बिल्कुल सरल है। Why are we saying they are heavy? क्यों कह रहे हैं कि वो भारी है? Because we can't believe in them. क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते इसलिए भारी लगता है। Many people say the book of Revelation is very difficult to understand. बहुत से लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य समझना बहुत मुश्किल है, Which is not true. वो सच नहीं है। It is easy to understand. बहुत आसान है समझना। By saying there is difficult to understand what they believe, what they mean is difficult to believe. यदि कोई कहता है इसको समझना बहुत मुश्किल है, उसका मतलब ये है कि विश्वास करने के लिए मुश्किल है। They don't want to believe what it says. वो विश्वास ही नहीं करना चाहते क्या लिखा है, And say, oh, I can't understand it. विश्वास नहीं करते इसलिए कहते हैं मुझको Oh, तो it's समझ में very नहीं आ रहा deep. है। Very deep. It's very deep. और बहुत गहरा है। No, it's not that
deep. ऐसा गहरा नहीं है, We have to simply believe it. हमको सरलता से विश्वास करना है। It is something almost impossible. ऐसा तो असंभव सी बात है, But nothing is impossible with God. लेकिन परमेश्वर के लिए तो कुछ असंभव नहीं है। What is written in the Bible is not difficult to understand. बाइबल में जो लिखा है समझने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, But some of them are difficult to believe. लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ बातें कठिन है। But we must realize that we are dealing with the true and the living God who has no limit to his power. लेकिन ये बात जानना जरूरी है, हम एक सच्चे जीवते परमेश्वर की बात करते हैं जिसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, So that we could now understand them and believe them. कि हम उस पर विश्वास करें और उनको समझ लें। The election of God. परमेश्वर का चुनना, God has elected his people. प्रभु ने अपने लोगों को चुना है। Another word that we all fight against is predestination by God. पहले से ही चुनना, इस विषय पर हम कई बार वाद विवाद करते Then हैं। calling of God. परमेश्वर का बुलाना, Very many things we बहुत talk about. ऐसी बहुत सारी बातें हैं। They are true. ये सच्ची बातें हैं, They are simply true. ये सरलता से सच्ची बातें We हैं, accept them हम उनको ग्रहण कर लेते हैं, because it is God who has predestinated. क्योंकि परमेश्वर ही है जो पहले से चुनता It है, is God who has elected us. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, We must only accept. हमें ग्रहण करना है। Now look at Romans chapter 11 verse 25. रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 25 वचन। Look at what God has done. देखो प्रभु ने क्या किया। For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness or hardness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। Blindness अंधापन has happened to Israel. इजराइल देश पर अंधापन छा गया, So the Gentiles could be saved. कि अन्य जातियां उद्धार नहीं पा सके, उद्धार पा सके। Who had such a plan? किसकी ये योजना है? God had such a plan. परमेश्वर की ये योजना है। Remember that. इस बात को याद रखिए, We cannot change that. हम उस बात को बदल नहीं सकते। God has every right to do what he wants to do. परमेश्वर जो भी करना चाहता है करने का पूरा हक उसके पास है। Once we know this, our worship becomes very meaningful. और जिस दिन इस बात को समझ जाते हैं, हमारा आराधना अर्थवंत हो जाता है, Our lives will be useful to God हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी जीवन बन जाता है, because we have surrendered our will, the human will, under God's will. क्योंकि हमने अपनी स्वाभाविक अपने मनुष्य की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दिया है। Let us read Romans 9 also. रोमी 9 अध्याय भी पढ़ेंगे। Romans 9:15. रोमी की पत्री 9 अध्याय उसका 15 वचन। For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। So we are believing in such a God. हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। He is the only God. वो एक मात्र परमेश्वर है, He is the only true God. एक सच्चा परमेश्वर है। He has these qualities and characteristics. उनके पास ऐसे गुण, ऐसी बातें हैं। He will have mercy on whom he will want to have mercy. जिस पर दया करना चाहेगा उस पर दया करेगा। How great then we are saved today. What a great thing that we are saved today. कितनी अद्भुत बात है, हमारा उद्धार हो गया He has decided on our behalf कि प्रभु ने हमारे विषय में निर्णय ले लिया that we should be saved. कि हमारा उद्धार हो सके, That is the reason for our worship. और हमारे आराधना का मुख्य विषय तो यही हो गया। Then comes the love of God. तब परमेश्वर का प्रेम की बात आती Then है, comes the sacrifice of God. परमेश्वर का समर्पण के बारे में बात The आती है, sufferings of the Lord Jesus. बलिदान और दुख, प्रभु यीशु मसीह के दुख की बात आती है। All these things happened under the sovereign will of ये God. सारी बातें परमेश्वर के सार्वभौमिकता के नीचे आती है। We need to bow before it. प्रभु के सामने, इस विषय के सामने हम सिर So झुकाते the हैं। knowledge of the Lord Jesus Christ is decided by God the Father. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की पहचानता की उत्तमता के विषय में ये विषय परमेश्वर के द्वारा निर्णय किया गया है। We have to move on without going into details of the
sovereignty of God and election of God. परमेश्वर के सार्वभौमिकता और परमेश्वर की बुलाहट के विषय, परमेश्वर के बुलाना के विषय में हम आगे जाने की अब जरूरत नहीं है। The second thing that we need to know about the knowledge of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में दूसरी बात जो हमें जानना है, that knowledge is received in the Spirit. और ये ज्ञान जो है केवल आत्मा में ही ग्रहण किया जा सकता है। Decided by the Father, पिता के द्वारा निर्णय किया गया, received in the Spirit. It's not about God, human spirit. आत्मा में ही ग्रहण योग्य है और ये मनुष्य की आत्मा की बात है। Now, you have accumulated knowledge. आपके पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा आपने किया है। You have gone to school, आप स्कूल गए थे, passed many exams. बहुत सारे एग्जाम पास किया, That you have done with the power of your brain and your mind. अपने दिमाग की शक्ति पर आपने इच्छा लगाकर आपने पढ़ाई किया। Knowledge of the Lord Jesus Christ cannot be received like that. और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान इस रीति से नहीं पाया जा सकता। About Jesus Christ you can know प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जान सकते हैं with your mind. अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, But to receive the knowledge of the Lord Jesus, you must receive it in your spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को यदि पाना है तो केवल आत्मा में ही पा सकते हैं। This is a very deeply spiritual thing. ये तो बहुत गहरी आत्मिक बात है। Think about it. इसके बारे में सोचिए। We have knowledge in the brain. हमारे दिमाग में बुद्धि है, So we know about the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। Where was he born? किधर जन्म हुआ था? In Bethlehem. बेथलेहम में जन्म हुआ था। How old was he when he came into public ministry? जब सामाजिक सेवा में वो आए थे तब उनका उम्र कितना था? 30 years of age. 30 साल की उम्र में आए थे। What was his mother's name? उनके माँ का नाम क्या था? Mary. मरियम था। What was his father's name that people thought his father was? उनके पिता का नाम क्या था और उनके पिता क्या Joseph. सोचते थे? यूसुफ। So many details. बहुत सारी बातें। Where was he brought up in his childhood? और बचपन में कौन से नगर शहर में थे? In Nazareth. नासरत में थे। All these नासरत। things we can know by the power of our mind and brain. हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके सारी बातें इकट्ठा कर सकते हैं। But the true knowledge of the Lord Jesus Christ comes in our spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता, पहचान की उत्तमता को केवल हमारी आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं। 2 Corinthians 5:16. दूसरा कुरिन्ती 5:16। 2 Corinthians 5:16. दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय उसका 16 वचन। Wherefore, henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। Christ, the word Christ is used there. यहाँ पर मसीह शब्द का इस्तेमाल हुआ। Jewish people knew about Messiah, ये यहूदी लोग जो थे वो मसीहा के बारे में जानते थे, that he should come from the line of David, और दाऊद के वंश में उसका जन्म होगा ये वो जानते that थे, he should be born in the village called Bethlehem. और बेथलेहम नाम के गांव में जन्म होगा ये वो जानते थे, They knew. वो जानते थे। So that is knowledge after the flesh. और ये ही शरीर के अनुसार जानने का मतलब है। But now henceforth we don't know him like that. लेकिन अब से हम ऐसा नहीं जानेंगे। It is spiritual knowledge, ये आत्मिक ज्ञान है, spiritual revelation. ये आत्मिक प्रगटीकरण है। How about you now? आपके बारे में क्या बात, कौन सी बात है? You must know the Lord Jesus Christ. That knowledge must be received in your spirit. आप प्रभु यीशु मसीह को जानना है, उनके ज्ञान को जानना है, लेकिन वो ज्ञान आपके आत्मा में ग्रहण होना है। So we are talking something different to the worldly knowledge. हम संसारिक ज्ञान से Talking अलग, about something different to the worldly knowledge. हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो संसारिक ज्ञान से परे है। It should be received in the spirit. ये केवल आत्मा में ग्रहण हो सकता है। Spirit is the antenna that can receive the knowledge of the Lord Jesus. हमारा आत्मा एक एंटेना की तरह है, केवल वो ही प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को पकड़ सकता है, पा सकता है। How about you? आपके बारे में कौन सी बात है? Have you got that antenna set up? क्या आपके जीवन में वो एंटेना का सेटअप कर दिया? How is your spirit? आपका आत्मा कैसा है? The Bible says बाइबल कहता है we have a spirit, soul and a body. हमें आत्मा, प्राण और देह पाया है, And our spirit is dead because of sin. और पाप के कारण हमारा आत्मा मरा हुआ है।
Now it cannot work. अभी उसका काम ही नहीं हो सकता, Antenna is broken. एंटेना टूट गया है, You have to now do something. अभी आपको कुछ करना पड़ेगा। It is not receiving this knowledge of Christ. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को पा ही नहीं सक रहा, But soulic knowledge is there. Soulic knowledge. लेकिन प्राण में जो ज्ञान है वो तो है। Soulic knowledge means according to your intellect. मतलब आपके दिमाग में, बुद्धि में जो बातें हैं, उस हाँ। बातों को प्राण के संबंधित ज्ञान हम कह सकते हैं। Your spirit must come back to life. लेकिन आपका आत्मा जीवन में आना जरूरी है। Paul the apostle says पौलुस कहता है that our spirit is dead. हमारा आत्मा मरा हुआ है। He says you were dead in your sins and वो trespasses. कहता है तुम अपने पापों में, अपराधों के कारण मरे हुए थे। That is Ephesians 2:1. इफिसियों की पत्री 2:1 में लिखा Which है, part of you were dead? आप में से कौन सा भाग मरा हुआ था? It was the spirit. आपका आत्मा मरा हुआ था, Because body and soul was alive. क्योंकि शरीर और प्राण तो ठीक थे, It is the spirit that was dead. लेकिन आपका आत्मा मरा हुआ था। Now look at the condition that we are in. देखो हम कौन से हालत में आज है, Helpless. निस्सहाय स्थिति। When you are dead, you are helpless. जब आप मरे हैं तो आप निस्सहाय हैं। When the spirit is dead, you are totally helpless. जब आपका आत्मा मरा है तो पूरी तरह निस्सहाय है। God must do something now. प्रभु अब तो कुछ करना है हमारे जीवन में, So please pray इसलिए प्रार्थना करिए, that प्रार्थना God करिए will do this. कि प्रभु काम कर सके, To bring life to your spirit. कि आपके आत्मा में जीवन डाल सके। Oh, if that happens, यदि वैसा होता है, knowledge of the Lord Jesus Christ will come to you. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता आपके पास आएगी। You will know Him, आप उनको जानेंगे, not about Him. उनके बारे में नहीं। You will have fellowship with Him. आप उनके साथ संगति करोगे, You will talk to Him. आप उनसे बातें करोगे, You will walk with Him. आप उनके साथ चलोगे, He will talk to you. वो उनके आपके साथ बात करेंगे। So it is the spiritual knowledge. ये आत्मिक ज्ञान है। Do you have that knowledge? क्या ये ज्ञान आपके पास है? Paul knew he had knowledge of Christ. पौलुस सोच रहा था कि पौलुस जानता है कि उसके पास प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान But है, it was only knowledge about Christ. लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता He था। says that was knowledge after the flesh. वो कहता है वो शरीर के अनुसार में जानता था, But now we don't know Him like that. लेकिन अब ऐसा नहीं जानता हूँ। Now it is a revelation in the spirit. अभी आत्मा में वो प्रकटीकरण है। We need to now think about it. अब इसके बारे में हमको सोचना है। This is the study of the scriptures. ये वचन का अध्ययन कहलाया जाता है। Now when we study, please compare your life now with that. जब हम इसको पढ़ते हैं उसके साथ अपने जीवन की तुलना कीजिए। What is your decision now? आपका क्या निर्णय है? Oh no, what is your estimate about your life? आपके जीवन के बारे में आपके क्या विचार है? Is your spirit alive or क्या, not? क्या आपका आत्मा जीवित है या मरा हुआ है? Naturally it is dead. स्वाभाविक रीति से तो मरा हुआ रहता है। God must intervene. केवल परमेश्वर ही आना है, His उतर spirit must come in. आत्मा अंदर आना है। You must decide now to totally surrender your life. आपको चुनना है कि अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण करें या Open नहीं। your heart. अपने हृदय को खोलना है। Lord, do something. प्रभु कुछ तो कीजिए। Please make my spirit again alive. प्रभु मेरे आत्मा को फिर से जीवित कर दीजिए। I know it is dead. मैं जानता हूं मैं मरा हुआ हूं, Otherwise I can't know you. नहीं तो मैं आपको जान ही नहीं सकता। Those who worship God must worship Him in what? Please. Those who worship God should worship Him in spirit and truth. जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो किस में करते हैं? There the word is human spirit. आत्मा और सच्चाई में। Return to your Bible and see बाइबल खोलकर देखिए, आत्मा का जो शब्द लिखा है वो that the मनुष्य की आत्मा की बात है। word spirit in English language is not spelled with capital S, इंग्लिश में जो स्पिरिट आत्मा लिखा है वो कैपिटल एस नहीं है, showing that it is man's spirit. कि वो मनुष्य का आत्मा है। Worship God in spirit. प्रभु की परमेश्वर की आत्मा आराधना आत्मा में करना है। So knowing God is a spiritual thing. परमेश्वर को जानना आत्मिक बात है। You must have that experience. ये अनुभव आपके जीवन में होना जरूरी है। This is not something that blindly we can go about doing. आंख बंद करके हम कैसे भी करते जाएं, ऐसी बात नहीं है ये। Oh, I have become a believer. मैं विश्वासी हो चुका हूँ, I am reading the Bible. मैं बाइबल पढ़ रहा I am हूँ, going to church. मैं कलीसिया जा I रहा am हूँ, serving God. मैं परमेश्वर की सेवा No, करता no, हूँ। this is highly spiritual matter. नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ऊंची आत्मिक बात है, A matter concerning our spirit. हमारे आत्मा के विषय में है। Now today we look at some people and call them very spiritual because they are keeping some rules. और आज हम कुछ लोगों को देखकर कहते हैं बहुत आत्मिक है क्योंकि काफी नियम को पालन करते हैं। No, no, people who have their spirit alive. लेकिन वो लोग आत्मिक है जिनके आत्मा जीवित है, They are the spiritual people. वे आत्मिक लोग हैं।
So please make sure that your spirit is alive. तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका आत्मा जीवित है, Otherwise, part of you is dead. नहीं तो आप में से एक भाग मर चुका है। So now you have to pray. अब प्रार्थना करना है, Please, God, have mercy. प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, I want my spirit to be मैं alive. चाहता हूँ कि मेरा आत्मा जीवित हो I जाए, want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ, I want to know the Lord Jesus मैं Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता I हूँ। have known about him so much. उनके बारे में बहुत जान लिया मैंने, But I want to know him. लेकिन आज मैं उनको जानना चाहता हूँ। That is why Paul is telling about excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. इसलिए प्रभु पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता करके कहता है, Because this knowledge is received in the Spirit. क्योंकि यह ज्ञान ये केवल आत्मा में ही हम ग्रहण कर सकते हैं। Then number 3, तीसरी बात, it is revealed through the scriptures. ये वचन के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। Knowledge of Christ, Jesus my Lord, is revealed through the scriptures. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता केवल वचन के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। Now we are going to major on that tomorrow and day after, God willing. इस विषय के ऊपर हम कल और उसके अगले दिन हम ध्यान करेंगे। Our Bible study will be on to receive the knowledge of the Lord Jesus Christ through the scriptures. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को वचन के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पर हम ध्यान करेंगे। Now I want to encourage you to remember some references. कुछ रेफरेंसेस को आप याद रख सके ऐसा मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। Not to memorize the word, वचन को केवल रट्टा मारना नहीं, but to remember the reference, कि वचन को याद रखना, so that you will know that it is the scriptures that will reveal the Lord Jesus Christ. कि आप जान सको ये केवल वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को प्रकट करती है। Revealed in what? In our कहाँ पर spirit. प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? So please, हमारे आत्मा में। please come with me now. It is revealed in the spirit. It is received by the spirit. वो आत्मा में प्रकट होता है, आत्मा के द्वारा ही वो ग्रहण होता है, But it is revealed through the scriptures. लेकिन वचन के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। Received in the spirit. आत्मा में ग्रहण किया जाता है, Revealed through the scriptures. वचन के द्वारा प्रकट किया जाता है। So we are going to read some verses. कुछ वचन हम पढ़ेंगे, Remember those references. इन रेफरेंसेस को याद रखिए। John 5:39. यूहन्ना 5:39, John 5:39. Search the scriptures, यूहन्ना 5:39 में लिखा है, for in them you think you have eternal life. They are they which testify of me. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। The Lord Jesus was speaking to people प्रभु यीशु who were मसीह Bible readers. प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। I don't know whether they sang the Bible chorus or not. बाइबल कोरस वो गाते थे या नहीं गाते थे मैं नहीं जानता, Most probably not. नहीं गाते होंगे, But they were reading the Bible. लेकिन बाइबल तो पढ़ रहे थे, Some of them were reading it every day. और कुछ लोग तो हर दिन पढ़ रहे थे। God said, you search. The Lord Jesus said, you search the scriptures. अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे तुम ढूंढो, पवित्र शास्त्र को ढूंढो, Because you think they will give you eternal life. आप सोचते हो कि वो मुझे अनंत जीवन देंगे, But they are they that testify of me. लेकिन वो वही बातें हैं जो मेरी गवाही देते हैं। Now please tell me, was the Lord Jesus referring there in the context to the Old Testament scriptures or the New Testament scriptures? यहाँ पर जो पवित्र शास्त्र की बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पुराना नियम की बात कर रहे हैं कि नए नियम की बात कर रहे हैं? बताइए। A simple question, please. सरल प्रश्न है। Old Testament पुराना scriptures. नियम की बात, They had only the Old Testament उनके scriptures पास पुराना नियम ही था at that time. उस समय में। The Lord Jesus said, they are they that testify of me. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये पुराना नियम की बातें हैं जो मेरी गवाही देते हैं, So then we also must search there. तो हमको भी वही ढूंढना है, That is what we are going to do और वही हम करने वाले हैं tomorrow and day after. कल और परसों। We are going to read the Old Testament scriptures हम पुराने नियम को पढ़ेंगे and grow in the knowledge of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम बढ़ेंगे। So I want you to do some homework. हम मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, We call it camp work. हम उसको कैंप वर्क कहेंगे। That you read,
आप पढ़ेंगे। Leviticus chapter 1. लेवी व्यवस्था पहला अध्याय आप पढ़ना है। Before you come for the Bible study tomorrow. कल बाइबल स्टडी में आने से पहले Shall we all do that? ऐसा करेंगे क्या आप लोग? We are all going to do it together. हम सब मिलकर करने वाले हैं। We are going to do it together. Leviticus chapter 1. लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं। We are going to see the testimony of the Lord Jesus in Leviticus chapter 1. लेवी व्यवस्था पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हम देखेंगे, Because the Lord Jesus said that. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। You read the scriptures. तुम वचन पढ़ो, Old Testament. पुराने नियम पढ़ो, They are they that testify of और me. यही वो बातें हैं जो मेरी गवाही देती हैं। So the first verse is John 5:39. पहली बात है, पहला वचन है यूहन्ना 5:39। Another verse, दूसरा वचन Luke 24:44. लूक 12 अध्याय और उसका 44 वचन। Luke 24:44. लूका सुसमाचार 24 का 44। Shall we read it together now? हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Now just to encourage you to turn. Some of you are only looking at the screen. मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप थोड़ा खोल कर पढ़िए, स्क्रीन की तरफ ही कुछ लोग देखे जा रहे हैं। If you keep on looking at only the screen, we are going to ask them to switch off the screen. यदि आप स्क्रीन को ही देखते बैठोगे तो स्क्रीन ही बंद कर देंगे। So please, you can use the screen, but you must use the Bible. स्क्रीन को भी देख सकते हैं लेकिन बाइबल से पढ़िए। Turning is very helpful. बाइबल खोलना बहुत Luke उपयोगिता है। 24:44. लूका 24 का 44। Shall we read now together? हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3. And फिर he said उसने unto उनसे them, कहा, These are the ये मेरी वे words बातें which हैं I जो spake मैंने unto तुम्हारे you साथ रहते while I तुमसे was कही yet थी, with you, कि अवश्य that है, all things must इतनी be बातें fulfilled, मूसा की which व्यवस्था were written in the और law वचनों of की पुस्तक Moses, में मनुष्य में लिखी in the हैं, prophets, सब and in the पूरी Psalms हो। concerning me. The Lord Jesus divided the Old Testament into 3 parts. प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम को 3 भागों में बांट दिया। What are the 3 parts? 3 भाग कौन से हैं? Look at there. देखिए, What is the first one? पहला भाग क्या है? The law of Moses. मूसा की व्यवस्था। And then second, दूसरी बात, the prophets. भविष्यद्वक्ता। The third one, तीसरा, the Psalms. भजन। There were 5 books in the Old Testament that comes under that category of Psalms, poetic books, poetry. यहाँ पर भजन संहिता में 5 अलग किताब आते हैं जो अलग अलग भाग में बांटे गए। Not only the book of Psalms, भजन संहिता ही नहीं, starting with the book of Job. अय्यूब से शुरुआत होते हैं। That is considered part of poetry. वो भी एक कविता के रूप में लिखा गया ऐसा मानते हैं। And going all the way to the Song of Solomon. श्रेष्ठ गीत तक ये कविता के रूप में लिखा गया That है। was a separate section in the Old Testament. ये पुराने नियम का एक अलग भाग है। So the Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you look there, वहां पर देखो, they speak concerning me. मेरे बारे में ही बातें करते हैं Things that are written concerning me are all fulfilled. और जो जो मेरे विषय में लिखी गई थी वो सारी बातें पूरी हो गई। So we must now, we must study the Old Testament. हमें अभी पुराना नियम पढ़ना है। Can you now remember these 2 references? क्या ये 2 वचन आप याद रखेंगे? John 5:39, यूहन्ना 5 का 39, Luke 24:44. लूका 24 का 44। What to look for when you read the Old Testament? जब पुराना नियम पढ़ेंगे तो कौन सी बातों को देखना है? We are going to, if possible, remember 7 references. यदि हो सके तो कुछ वचनों को हम याद रखना है। John 5:39, यूहन्ना 5 का 44, Luke 24:44, लूका 24 का 44 and we are also going to remember Romans 15:4. और रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका The 4 वचन। reference, please. 15 का 4 और रेफरेंस याद रखना है। For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. 15 का 4 जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। So the Old Testament was written for our learning aforetime. तो पुराने नियम में जो बातें लिखी गई हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। But first 2 verses were about the knowledge of Christ. लेकिन पहले 2 वचन प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के But बारे this में। is a general verse. ये जनरल वर्स है। Whatever is written, जो भी लिखा है they are written for our learning. ये सारी बातें हमारी शिक्षा के लिए। Verse number 4. चौथा वचन 1 Corinthians 10:11. पहला कुरिन्ती 10 का 11। 1 Corinthians 10:11. पहला कुरिन्ती 10 अध्याय और उसका 11 वचन। All these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। They are written for our admonition. हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। So now we have got a collection of
4 verses. अभी हमारे पास 4 वचन है। So for today we will try to remember those 4 ये verses. 4 वचन हम याद रखेंगे। Tomorrow we will get the other 3 also. कल आपको और 3 वचन भी मिल जाएंगे। Now can you come with me now to repeat them? क्या इन 4 वचनों को आप दोहरा सकते Don't हैं? look at your book now. बुक देखे बिना रेफरेंस बताइए। Try 4 to commit them to your memory now. आप अपने याददाश्त में रखिए। John 5:39. यूहन्ना 5:39। Please don't display them on the screen. स्क्रीन पर मत दिखाइए। John 5:39. यूहन्ना 5:39। Luke 24:44. लुका 24:44। Romans 15:4. रोमी 15:4 वचन। 1 Corinthians 10:11. पहला कुरिन्ती 10 अध्याय का 11 वचन। Now this is how we learn now how to read the Old Testament. आप पुराना नियम कैसे पढ़े? Why to read the Old पुराना Testament? नियम क्यों पढ़े? We have reasons here. यहाँ पर वो कारण लिखे हैं And we turn now and read and learn. और हम मोड़ेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। So we are going to read Leviticus chapter 1 and come prepared tomorrow. और लेवियवस्था पहला अध्याय हम पढ़ेंगे और कल तैयारी के साथ आएंगे। But we are trying to gather some thoughts about the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के बारे में हम कुछ बातें इकट्ठा कर रहे हैं। First thought was it is decided by the Father. पहली बात है पिता के द्वारा नियुक्त किया गया है। It is received in the Spirit. दूसरी बात है आत्मा में वो ग्रहण किया जाता Then है। thirdly, it is revealed in the और Scripture. तीसरी बात है वचन में उसका प्रकटीकरण है। And then number 4, चौथी बात, the knowledge of the Lord Jesus transforms lives. और प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता जीवन को बदल देती है, It transforms lives. जीवन को रूपांतरित कर देती है। It can never stay without transforming life. बिना रूपांतरित किए वो वचन नहीं रहता। Knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता This is a very, very searching moment now of our lives. हमारे जीवन में जांचने का ये बहुत ही मुख्य समय है। Has there been a change? क्या बदलाव आया है? This change is called transformation. इसको हम कहते हैं रूपांतरण। Our attitude. हमारा व्यवहार And then finally our lifestyle. और हमारा जीवन शैली, Has there been a change? क्या कुछ बदलाव आया है? Then only we can know that you have had the knowledge of the Lord Jesus. तभी हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता हमको मिली है। Second book of Corinthians, और दूसरा कुरिन्ती chapter 3, तीसरा अध्याय verse 18. 18 वचन। Second book of Corinthians, chapter 3, verse 18. दूसरा कुरिन्ती 3:18। But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So we are now being changed हम अभी बदलते जाते हैं by the knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता से। We are looking at Him. प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं When we look at Him, what happens to us? और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो क्या होता है? Transformation will take. रूपांतरण शुरू होता है। So if there is no transformation यदि कोई रूपांतरण नहीं है of our character, हमारा व्यवहार का, then there is a problem. तब कुछ समस्या है That means we have no knowledge of Christ. कि प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है हमारे पास। So this is the difference I am trying to show you right throughout now. और अभी मैं यही अंतर आपको दिखाना चाह रहा था। Our life must be real. हमारा जीवन सच्चा होना We चाहिए, must be real Christians. हम सच्चे मसीह होने चाहिए। We have to be according to what the Bible says about the knowledge of Christ. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में बाइबल जो कहती है वैसा ही हमको होना चाहिए। Are we walking in His footsteps? क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं? Exactly like He walked. जैसे वो चले क्या हम भी वैसा चलते हैं? That happens only when we know Him. और तब होगा जब हम उसको जानेंगे। Knowing Him, we will be transformed. जब उनको जानेंगे हम रूपांतरण हो If we जाएंगे। are ignorant of Him, we will remain the same old person. और यदि उनसे अनजान रहेंगे तो पुराना जीवन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। So that is now point number 4. अभी चौथा विषय, वो चौथा विषय था। Since we are now going to finish, अभी हम अंत करने जा रहे हैं। let me go to now point number 5. पांचवा विषय है, Point number 5 is
The knowledge of the Lord Jesus Christ begins now and here, and it never ends. प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान अभी और आज शुरू होगा, कभी खत्म नहीं होगा। It begins now and here, आज और अभी शुरू होगा it never ends. और वो कभी खत्म नहीं होगा। We'll go on knowing Him, उनको हम जानते ही जाएंगे, knowing Him more and more. उनको ज्यादा और ज्यादा जानते He जाएंगे। started with the knowledge of Christ, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से हम शुरू किए, but it is not complete. ये पूरा नहीं हुआ, We are growing in that knowledge. अब उसी ज्ञान में हम बढ़ रहे Now हैं। look at Philippians chapter 3, फिलिप्पी 3 अध्याय verse 10. 10 वचन। He says, Paul says, that I may know Him. फिलिप्पी 3 अध्याय 10 वचन, ताकि मैं उसको जान सकूं। See, after he had spoken about the excellency of the knowledge, प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के विषय में बात करने के बाद, which he apparently already had, वो तो पहले से ही वो जानता था, he is telling now, I want to know Him. और अभी कहता है मैं उसको जानूं। That means his knowledge of Christ has not finished. मतलब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान पूरा नहीं हुआ। You got my argument? मेरा विचार आपको समझ में आया? In chapter 3, verse 8, 3:8 में लिखा है, yes, I have the excellency of the knowledge of Christ. For that, I have counted everything else as loss and dung. वो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को पा लिया हूँ, इसलिए सारी बातों को कूड़ा समझ लिया हूँ। He speaks of the knowledge of Christ as something that he has got. ऐसा लिखता है कि मैंने उस उत्तमता को पा लिया है, Now he is talking about it as something he is getting. और अभी फिर से लिखता है जैसे वो और पाने वाला है, That I may know Him. कि मैं उसको जान That सकूं। means it is now advancing, it is progressing. मतलब वो बढ़ते जा रहा है। So it goes well with second book of Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा है, The very last words of Peter the apostle. पत्रस आखिर में ये बातें कहता है, He never spoke to us after that. उसके बाद उसने कहा, कुछ भी नहीं कहा। Second Peter 3:18. दूसरा पत्रस 3:18 What does it say? क्या कहता है? But grow पर in हमारे grace प्रभु और and in the उद्धारकर्ता, knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। Grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओ। Now have you started off in this progression, this exercise? क्या ऐसे अभ्यास को आपने शुरू किया और क्या आप बढ़ते जा रहे हैं? Let us go like Paul, पौलुस की तरह हम जाएं, having the excellency of the knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को पकड़े हुए हम चले, So all the other human knowledge are like dross, they are like dung. कि और दूसरा मनुष्य का जो भी ज्ञान है बस कूड़ा के समान है। But that is not the end. लेकिन वो अंत नहीं है, I am knowing Him more and more. मैं उसको और भी जान रहा हूं। When someone asks you, do you know the Lord Jesus Christ? यदि कोई आपसे पूछे क्या आप प्रभु यीशु मसीह को You have जानते to say, हैं, yes, I am knowing Him. आप कहना है हाँ, Still knowing him. मैं उनको और भी जान रहा हूँ Progressing in that knowledge. और उस ज्ञान में बढ़ रहा हूँ। Yes, I have saving knowledge. उद्धार देने वाला ज्ञान है, I am saved. मैं उद्धार पा लिया, But now I am growing in that knowledge. लेकिन अभी उस ज्ञान में बढ़ता चला जा रहा हूँ, Forever and ever. सदा सदा काल के लिए। Now some of us will go to heaven. हम में से कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे, And now we are thinking, now once you go to heaven, you will have known the Lord Jesus fully, completely. हम बहुत लोग सोचते होंगे स्वर्ग जब जाएंगे तो तब तक तो प्रभु यीशु मसीह को पूरा जान लिए होंगे। No, it is not going to happen. ऐसा नहीं होने वाला, We will be knowing Him in eternity also. अनंत काल तक भी बस जानते ही चले जाएंगे। A little bit more, और थोड़ा, something more, और भी थोड़ा, something more. और भी थोड़ा। Yes, then will we realize that, oh, this is not a time-related matter. This is an eternal exercise. और तब आपको समझ में आएगा ये अभ्यास समय के सीमा में नहीं रहता, ये तो समय से परे है। So we have eternal work. और हमारे पास अनंत काल के लिए काम है। We are beginning it now. आज हम शुरू कर रहे हैं उस काम को। So let us continue this exercise of knowing the Lord Jesus through the scriptures. वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को जानने का अभ्यास हम शुरू करें। We'll try to see Leviticus chapter 1. If possible, read chapter 2 also. लेवी व्यवस्था पहला अध्याय हम देखेंगे, यदि हो सके तो दूसरा अध्याय भी पढ़कर आना। Whatever we can know of the Lord Jesus through the scriptures. वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जो भी बातें उनको हम जान सके। Now let me finish with the
with the third point. तीसरा विषय से अंत करेंगे। This knowledge is received in the spirit of man. ये जो उत्तमता है केवल मनुष्य के आत्मा में ही ग्रहण योग्य है। There is no other way that we can receive that knowledge. इस ज्ञान को पाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। Then our spirit must be alive. तब हमारा आत्मा को जीवित रहना बहुत जरूरी है। Please take an honest estimate of your life. अपने जीवन को खरे से जांच लें, खराई से जांच How लें। is it? आपका जीवन कैसा है? Have you got your spirit alive now? क्या आपका आत्मा जीवित है? Only the Spirit of God can do that. केवल प्रभु का आत्मा ही ये काम कर सकता He है। must come into you. प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आना है। He must penetrate into your heart. प्रभु का आत्मा आपके हृदय में प्रवेश करना He है। must give life to your dead spirit. प्रभु का आत्मा मरे हुए आपके आत्मा को जिलाना है। So then you can now ask God to do that. और आप प्रभु से अभी कह सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा करिए। It happens by faith. ये विश्वास से होता है। By faith in the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है As to who He is कि वो कौन है and as to what He has done. और उसने क्या किया है। What has He done? उसने क्या किया है? He has died on the cross कलवरी के क्रूस पर वो मर गया है to do that very important work of atonement. कि प्रायश्चित का वो काम को पूरा कर सके, To bring you peace with God. आपके बदले में प्राण देकर परमेश्वर आपके बीच में मेल को ला सके। And He did something more, और भी बढ़कर एक काम किया which is called propitiation. और आपके बदले में प्रायश्चित किया। That is something very, very terrible thing. और ये तो बहुत ही भयानक बात है। To appease God's anger. परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। God was angry with you. प्रभु आपसे बहुत क्रोधित था। Now that anger is वो appeased. क्रोध अभी शांत हो गया। Why? क्यों? The Lord Jesus shed the blood. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा दिया। So these are real things. ये सच्ची बातें They हैं। have actually happened. ये सच में हुई है। Will you receive it now? क्या उसको ग्रहण करेंगे? Will you believe it? क्या विश्वास करेंगे? That moment, ये संदर्भ को देखेंगे। the Spirit of God will bring life to your spirit. प्रभु का आत्मा आपके आत्मा में जीवन लाएगा। So believe now. अभी विश्वास करिए। Then from today you will have the knowledge of the Lord Jesus तो Christ. आज से प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को आप पा सकेंगे। Shall we pray now? प्रार्थना करेंगे। We are just closing our eyes wherever we are. आप जहाँ पर भी है अपनी आंखों को बंद कीजिए। Please close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए। Closing eyes will help us to concentrate. आंख जब बंद करते हैं तब हम गंभीरता से सोच सकते हैं। What about your spirit? आपकी आत्मा के बारे में आप क्या Is it सोचते dead हैं? or alive? क्या आपका आत्मा मरा है या जिंदा है? Oh, apparently I know so many things about the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, But has that knowledge been transferred to my spirit? क्या वो ज्ञान मेरे आत्मा में आया है? It is a new thing. ये एक नई बात है। So spend this time in prayer. इस समय प्रार्थना में बिताइए। Ask God to do this work, प्रभु से कहिए, प्रभु जी एक काम मेरे जीवन में कीजिए that the Spirit of God may come कि प्रभु का आत्मा आ सके and bring to life your spirit. और आपके आत्मा में जीवन ला सके। Oh Lord, I am helpless. हे प्रभु मैं निस्सहाय हूँ, I know I am a sinner. मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, So my spirit is dead. मेरा आत्मा तो मरा हुआ है। What can I do now? अब मैं क्या करूँ? God, have mercy upon me. प्रभु मुझ पर दया कीजिए। Please pray like that. ऐसी प्रार्थना आप करें। That is your only hope. यही आपकी एकमात्र आशा है। Please enter into my life. प्रभु जी मेरे जीवन में प्रवेश करिए। I receive you. मैं आपको ग्रहण करता हूँ। Lord, you have turned away God's wrath from me. प्रभु यीशु पिता के क्रोध को मुझ पर से आपने हटा दिया, Because of your precious blood was shed. क्योंकि आपका बहुमूल्य लहू बहाया गया। God is no longer angry with me. प्रभु आज मुझसे क्रोधित नहीं है। God should have been angry with me, a sinner. मैं एक पापी था तो प्रभु का मुझ पर क्रोध होना बिल्कुल I सही should be था। punished. मैं तो दंड के योग्य हूँ। I have done so many sins. मैंने कितने सारे पाप किए हैं, But oh God, now you have forgiven me. लेकिन प्रभु जी आज मुझे आपने क्षमा कर दिया। Because of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह की वजह से क्षमा पाया। Lord, do this spiritual work in me. ये आत्मा का काम मेरे अंदर करिए। May my spirit live again. मेरा आत्मा फिर से जीवित हो सके। I can receive the knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को मैं फिर से प्राप्त कर सकूं।
Please keep on praying like that. ऐसे आप प्रार्थना करते रहिए, God will answer your prayer. प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। You will know the difference. आप उस अंतर को जान जाओगे। Now it is spiritual knowledge. ये एक आत्मिक ज्ञान है। Whenever you read the Bible, जब भी आप बाइबल पढ़ोगे, God will show you the Lord Jesus. परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे, Whether it is Old Testament or the New वो Testament. चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो। God will show you the Lord Jesus. परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे, It will be revealed to you through the scriptures. वचन के द्वारा प्रकट किया जाएगा। It is my prayer that you genuinely pray now. सच्चे खरे दिल से अभी आप प्रार्थना कीजिए। Gracious loving Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we thank thee for thy great love to us. आपके उस महान प्रेम को जो आपने हमारे प्रति दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। Thou eternal God, अनंत काल के परमेश्वर है, sovereign God, सार्वभौमिक परमेश्वर है। God who decides everything. आप वो परमेश्वर है जो सब कुछ निर्णय लेते हैं। Thou hast decided concerning me. आपने मेरे विषय में निर्णय लिया। I worship thee. मैं आपको आराधना करता हूँ। Thou hast chosen me, आपने मुझको चुन लिया, elected me, आपने मुझको ठहराया, forgiven me, मुझे क्षमा कर दिया, justified me, मुझे धर्मी ठहराया, made me your child. मुझे अपना बेटा बना लिया। I thank thee. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। What a great salvation is mine. कैसा महान उद्धार मेरा है। Now, O God, अब प्रभु जी show me thy Son, अपने पुत्र को the दिखाइए, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह को दिखाइए, revealed in the scriptures. वचन में जो प्रकट किए गए हैं। Wherever I may read the Bible, whenever I read the Bible, जहाँ पर भी और जब भी मैं बाइबल पढूं, from whatever passage, जो भी भाग मैं पढूं, show me the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को दिखाइए। That is my eternal life. कि प्रभु यीशु मसीह मेरा अनंत जीवन है। This is my eternal occupation. ये मेरा अनंत काल का ये काम है। I thank you, O God. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ You will reveal thy Son to me more and more. कि आप अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करते जाएं। Gracious loving Father, we thank thee for this time of reading the scriptures. प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए जब हमने वचन को पढ़ा। Now, Lord, give us opportunity to reflect upon what we have read. प्रभु जी अभी हमें समय दीजिए कि जो बातें हमने पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ी देर सोच सके, During the time of discussion, और जब हम बैठकर आपस में बातचीत करते हैं तो इन बातों को समझ सके। help us to clear every doubt, हर प्रश्न संदेह को हम दूर कर सके, to discuss what we have studied. कि जो हमने अभी सीखा उसके बारे में ध्यान कर Be सके। with us, O God. हमारे साथ रहे प्रभु, Bless our time together. हमारे समय को आशीष कीजिए, Accept our thanksgiving. हमारे धन्यवाद की भेंट को ग्रहण In the कीजिए। name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।